नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो आयरियानम नमो वसायानम नमो वज्रायानम नमो लोए सवसाहनम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सर्वपावपनासनो सर्वपावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। આ સત્સંગ છે ને અહીંયા બધો પ્રશ્નો કરાય, જે કઈ પ્રશ્નો હોય ને બધું પૂછાય, મુક્ત મને પૂછાય. આપણે ઘરમાં બેસીને વાતો કરતા ને એવી રીતે સત્સંગ એટલે આપણી પોતાની વાતો. આખી જિંદગી આપણે જે અનંત જન્મોથી આપણે જે ભટક કરીએ છીએ ને, તો કે આપણે બીજાની વાતો કરીને એટલે આપણે ભટક્યા કરીએ છીએ. ને સત્સંગ એટલે આપણી પોતાની વાત. એટલે અહીંયા મુક્ત મને એવી વાતો થાય. તમે બે આવ્યા નહીં? તો બીજા બધા નહીં આવે? આવશો. પૂછજો. એટલે કયા ભગવાનની ભક્તિ કરો છો? કબીર સાહેબ નો ભક્તા રામ કબીર. હા, બહુ સરસ. કબીરજી તો બહુ પાક્કા રાખે બધા. રામ કબીર ને સત કબીર કે અમારે સત કબીર, રામ કબીર થોડું જુદું. અચ્છા, બરાબર. એવું મને ખબર કબીર જ બધું, પણ સત અમારે આગળ લાગે, સત કબીર. ના, બરાબર. મને એવું ખબર નથી. મને એમ કે પેલા ભક્તા બધા મળે ને બધા, હા, આપણે કબીરજી ને માને બધા, હા, રામ કબીર. માને કબીરજી. રામ કબીર. તો એ લોકો બહુ ચુસ્તો હોય. હા, કોઈને ગુસ્સા ના દે. અમારે એવું નથી. ના, એ તો હું આવી જઈશ તમારે ત્યારે ખબર પડી જશે મને. એટલે એ લોકો ચુસ્ત એટલે કે તમને ત્યાં લગ્ન હોય ને તો બધી રસોઈ જાતે બનાવે, બ્રાહ્મણને ના બોલાવે. રામ કબીર. તમારું એવું નહીં? ના, ના. સારું, થોડું ફ્લેક્સિબલ છે એટલે સારું. એટલે હવે મને બીક નહીં લાગે. એટલે મને બીક લાગી જાય. પણ કબીરજી બહુ પેલા કે ને ચોખ્ખા સંત થઈ ગયા. થોડા બોલવામાં જ્યાં કડક હતા. તમે પણ કડક નથી ને? તમે તો તમે નહીં ને? કડક નહીં ને? કબીરજી ના ભક્ત એટલે કબીરજી બોલવામાં બહુ કડક હતા. પાછા કહે ખરા, કબીરજી કહે ખરા કે મેરી બાની ખાંડે કી ધારા, જો ગ્રહે સો નિકલે પારા. એટલે કબીરજીએ શું કીધું કે મેરી બાની ખાંડે કી ધારા, એટલે તલવાની ધાજો, ખાંડે તલવાની ધાજો, જો ગ્રહે સો નિકલે પારા. એટલે જે સમજીને ગ્રહણ કરે તો કે આ સંસારની પાર ઉતરી જાય. તો તમે તો પહેલેથી બધું સારું એવું ગ્રહણ કરેલું હોય ને. અહીંયા નવા આવે ને આગળ બેસાડીએ છીએ. નવા નથી, જૂના. સત્સંગમાં પહેલી વાર આવ્યા. હા, એટલે નવા એટલે આપણે સત્સંગમાં નવા એવું જ કહું. એમને દાદાનું સાંભળેલું છે અને મને સ્ટોરમાં મળ્યા હતા, તો મેં કહ્યું મારા ઘરે છે સત્સંગ, તો આવજો. ઓહો, એટલે એમને ઘણું બધું સાંભળેલું છે. કઈ બાજુના તમે? આફ્રિકાના. આફ્રિકા પણ ક્યાં? કેન્યા, યુગાન્ડા, ટાંઝાનિયા? યુગાન્ડામાં પણ ક્યાં? કંપાલા, મબાલે. હા, મબાલેમાં આપણે એક જયંતિભાઈ હતા, ઓળખો તમે? જયંતભાઈ પટેલ ભાદરના હતા. એમની પેલી મિલ હતી ત્યાં. તો આજે કબીરજીની આપણે વાત કરતા હતા ને, એટલે કબીરજી ની વાણી કડક હતી પણ દિલના બહુ ચોખ્ખા હતા. પોતે નરમ હતા, વાણી કડક હતી. ઓહો, હા, એ સાચું. પોતે નરમ હતા, વાણી કડક. એકદમ નરમ. મેં જોયેલા નહીં એટલે મને બહુ ખબર નહીં. એટલે આ વાણી સાંભળી. હા, ના, મતલબ એમની વાણી જોઈ હોય ને, વાણી છે કડક પણ દિલના ચોખ્ખા છે. તો કબીરજીને એકવાર એવું થયેલું, એ દિલ્હીમાં રહેતા હતા.
ને ત્યાં બ્રાહ્મણો બધા યજ્ઞ કરતા હતા. અને એ જમાનામાં યજ્ઞ કરે એટલે બ્રાહ્મણો છેલ્લે બકરાનો બલિ આપે. આ કબીરજી ત્યાંથી પાસ થયા એટલે એમને આ બધું જોયું. એમને તો એમ તો ફિટ જ ના થાય કે આ બલિ આપવાનો. એટલે કહે છે, અરે ભૂદેવ ભૂદેવ તમે શું કરો છો? કે તને ખબર ના પડે અમે આ બકરાનો બલિ આપીએ છીએ. તો કે બકરાનો બલિ શું કામ આપો છો? તો કે અમે બકરાનો બલિ આપશું ને એટલે આ બકરો સ્વર્ગે જશે. તો આ કબીરજી તો બંધ ફટકી. તે કહે છે કે તારા બાપા બીમાર છે, ખાટલામાં પડી જાય છે, એમનો બલિ આપી દે સ્વર્ગમાં જાય. આવું બોલવામાં ચોખ્ખા હતા. સમજાય? દિલમાં પાપ નહીં પણ બોલવામાં ચોખ્ખા. ના ચોખ્ખા માણસો હોય ને એ વ્યવહારમાં કઈ ફસાય નહીં પછી. અને વ્યવહારમાં માર બહુ ખાય. એટલે વ્યવહારમાં માર ખાય બધી. ને વ્યવહારમાં માર ખાય એટલે પછી જાય મોક્ષ તરફ જાય. પાછા કબીરજી રહે ક્યાં? આમ પછી કબીરજી હિન્દુ કે મુસ્લિમ કે બધું કે ને. તો કબીરજી રહે કસાઈવાડામાં. કસાઈવાડો સમજે ને, બુચર્સ લેન આગળ સમજાય. એટલે ત્યાં પછી પેલા તુલસીદાસજી હતા કબીરના ટાઈમમાં. એમને કબીરનું નામ સાંભળ્યું એટલે એમને થયું કે આ કબીરજી એટલા મોટા સંત છે, ચાલો કે અમને દર્શન કરી આવું. તે ફરતા ફરતા આવ્યા દિલ્હી. દિલ્હી આવીને પૂછ્યું કે કબીરજી ક્યાં રહે છે? એટલે કઈ જાઓ પેલી બાજુ. તો પછી કસાઈ વાળો આવ્યો. પાછું ભાઈ કબીરજી ક્યાં રહે છે? તો કે આ ગલી પૂરી થાય ને એ છેડે જજો. એટલે સારું કસાઈ વાળામાં જાય એટલે બંને બાજુ પેલા બકરા લટકાયા હોય ને બધું માંસ બધું મૂકેલું હોય ને. એટલે એ તો પેલા સંત એટલે આવું તો એને પેલું કલ્પના ના કરી હોય. એટલે આમ જોયે ને આમ થૂકે, આમ જોયું ને આમ થૂકે, એમ કરતા કરતા ગયા. અંદર તો બહુ અંદર ચાલે કે આ કબીરજી આટલા મોટા સંત અને આવી જગ્યાએ રહે છે, એમને જગ્યા તો બદલવી જોઈએ. તો પછી કબીરજીને મળ્યા તો પછી એમાંથી રહેવાયું નહીં. એટલે કબીરજીને કીધું કે તમે આટલા મોટા સંત છો અને તમે આવી જગ્યા કેમ રહો છો? તમે બીજી કોઈ સારી જગ્યાએ રહેવા જતા રહો. કબીરજી પાછા બોલવામાં ચોખ્ખા ને કે જો કરેગા વો પાએગા, જો કરેગા વો પાએગા, તું ક્યું ભયો ઉદાસ? કે જે કરશે એ ભોગવશે, તું શું કે આટલો ઉદાસ થઈ જાય છે? એટલે આ જે એમની જે હતી નાખી. અને પાછા એમનો એક શિષ્ય હતો. એટલે ઘણો સમય થઈ ગયો. એટલે શિષ્ય અવઢવમાં હતો, ડાયલેમામાં કે મારે લગ્ન કરવા કે લગ્ન ના કરવા. તો એ જમાનામાં જો શિષ્ય પેલો શિષ્ય બનાવે પછી લગ્ન ના કરે. એટલે આને શિષ્ય થવું હતું. એટલે આમ શિષ્ય પણ પેલી તેમ પેલો નહીં. એ વિચારે હું લગ્ન કરું કે ના કરું, લગ્ન કરું કે ના કરું. તો પછી એનાથી રહેવાય નહીં. તો વારંવાર કબીરજીને પૂછ્યા કરે કે મારે શાદી કરવી કે શાદી ના કરવી. તો કબીરજી કે પછી આવજે ને એની વાત ફેરવ્યા કરે. પછી એકવાર આવ્યો. આ થોડી વાર્તાઓ કરીએ બીજા, ચાલશે ને વિભૂતિ? હા હા, પાછી કાલે આવજો ભાઈ સત્સંગમાં. કઈક આ વાર્તાઓ કઈ નથી આવું એવું કે. તો પછી એમાં એ ભાઈ પાછળ પડી ગયા. કબીરજી આજે તો જવાબ લઈને જ જવાનો છું. કબીરજી કાપડ વણતા હતા. બપોરનો ટાઈમ ને કાપડ વણતા હતા. પૂછે પણ કબીરજી જવાબ ના આપે. તો ભાઈ કબીરજી કે આજે તો હું જવાબ લઈને જ જવાનો છું. એટલે કબીરજી સાવતા અહીંયા ઉભો રહે કે કબીરભાઈ એના હમું જુએ નહીં, પેલું કાપડ વણ્યા કરે. અને બપોરનો તાપ એટલે પેલો સારું ગરમ થાય ને પાછું. આ મને કેવું પાછું દજાવાતું પેલું.
તો પાછું પેલા પૂછ્યું કે મને જવાબ તો આપો કે મને જવાબ તો આપો કે એટલે પછી કબીરજીએ એની બીબીને બૂમ પાડી કે બીબી આવીએ યહાં. એટલે એની પત્ની આવી. પછી કહે કે 2 હાથમાં 2 દીવા લઈને આવો એમ. તો 2 હાથમાં 2 દીવા લઈને આવે છે. પછી આવે તો પેલા એની સામે જોતા જ નથી, એનું કાપડ વણ્યા કરે. પછી 15-20 મિનિટ થઈ એટલે બીબીને કહ્યું કે અભી આપ જાઈએ. તો પેલી દીવા લઈને જતી રહી. પાછો પેલો એમનો શિષ્ય કે તમે મને જવાબ તો આપ્યો નહીં. કે તમે જવાબ તો આપી દીધો કે. તો પેલા તો એ સમજાયું નહીં. તો કહેજે તારે લગ્ન કરવું હોય તો આવી બીબી મળે તો કરજે. કે બપોરના આટલા તાપમાં મેં કહ્યું 2 દીવા લઈને આવી જાય, આવી ગઈ. 15 મિનિટ ઉભી રાખી, મેં એક શબ્દ કહ્યો નહીં. પછી કહું તું જા, તો જતી રહી. એના અંદર એક વિકલ્પ ઉભો ના થયો ને કે આવી બીબી મળે લગ્ન કરજે કે. છોકરાઓ નથી વાત કરે, સીલ બિલ નથી એ વાતો કરે. એટલે એમની જે સમજવાની રીત હતી ને કબીરજીની બહુ સરસ હતી. એટલે કબીરજી બહુ સાહસી હતા, દિલના બહુ ચોખ્ખા. એમની વાત પકડાય તો કામ થઈ જાય. પણ તમે આ કબીરજીની ભક્તિ કરો એટલે અંદર સારું રહે ને, ઠંડક રહે ને. આ કોઈ તમારો અપમાન કરે અસર ના થાય ને, બહુ સારું. અને ચિંતાઓ તો થાય જ ને કબીરજીની ભક્તિ કરી એટલે. ચિંતા આમે બધાને હવે ઇન્ડિયામાં ચિંતાઓ હતી ને પછી અહીંયા આવે તો આમે એનું બેગેજ વધી જાય ને, ચિંતાનું કાર્બેજ ત્યાં મૂકી દે. અહીંયા ચિંતા ના હોય ને. આ વાત એવી છે કે જો કબીરજીની સાચી ભક્તિ કરતા હોઈએ ને તો આપણને કોઈ અપમાન કરે, કોઈ દુઃખ આપે, કોઈ ચીટિંગ કરે, કોઈ કંઈ પણ કરે, અંદર શાંતિ રહેવી જોઈએ. આપણે રિટાલિએટ ના કરીએ, આપણે એની ઉપર એના દોષ ના દેખાય, એની પર ગુસ્સો ના આવે અને અંદર શાંતિ રહે તો સમજવું કે આપણે ધર્મના સાચા રસ્તા પર આવી ગયા છીએ. સમજાય? આ વાત સમજાય ને તમને? સંસારમાં તો બધી જાતના આપણે લોકો ભેગા થવાના નહીં થવાના. આ બધા ભેગા થાય છે કે એમ જ ટપકી પડે છે? તો કે ના, કંઈક આપણો પાછો હિસાબ છે એટલે એ બધી વ્યક્તિ આપણને ભેગી થાય. હવે કોઈ ભેગી થાય કોઈ આપણું અપમાન કરે તો આપણે શું થાય કે એને મારું અપમાન હું પણ જોઈ લઈશ. થાય કે ના થાય? અંદર ગાંઠ મારી ના મારીએ કે મેં બી દેખુંગા. મારા ઘાટમાં આવવા દે ને, લાગમાં આવવા દે કે હું જોઈ લઈશ, હું છોડું નહીં એને. અંદર બધું થાય. એટલે કોઈ અપમાન કરે, કોઈ દુઃખ આપે, કોઈ પૈસા દબાવી જાય એટલે આપણને અંદર બધું એ નોંધ થઈ જાય અને એના આધારે અંદર આનંદ રહે નહીં. પણ આપણે ભલે તમે યુગાન્ડાના પણ કહેવા તો ઇન્ડિયન ને. હા, કાઠિયાવાડ કે કયું કાઠિયાવાડ કયું પાછું? જામનગર. એટલે વિસા, જામનગર, અમરેલી, વિસા, વિસા. વિસા તો બહુ સારા કહેવાય, ડેવલપ કહેવાય. અહીંયા છે વિસા નહીં? એ બધા બહુ ઓછા હશે. ઘણા છે, જામનગર, અમરેલી, રાજકોટ ઘણા. રાજકોટના પેલા પ્રફુલભાઈ રાજકોટના આ વિસા ઓછો ને, વિસા ઓછો. આમ તમને બધાને ખબર ના, ખાલી કહું છું, લાઇટલી વાત કરું છું. વિસા ઓછો એટલે જૈનો હોય ને, જૈનોમાં વર્ષો પહેલા આપણને તો એવું ખબર કે આ શ્વેતાંબર ને દેરાવાસી ને એવું ખબર હોય ને, દિગંબર ને શ્વેતાંબર એવું ખબર હોય. અને પછી શ્વેતાંબરમાં સ્થાનકવાસી ને દેરાવાસી એવું ખબર હોય. પછી આમાં આ બધા જૈનો બધા સાત બહુ હોય, એમના રિવોલ્યુશન બહુ ફાસ્ટ ચાલે. એટલે આ બીજા સમજી લે એના કદાચ જલ્દી વાત સમજી લે.
ગ્રાસ્પિંગ પાવર સારો હોય, ધંધાની ગટ સારી હોય, ધંધો કરવાની, એટલે પછી એમને ભાગ પાડે, દોઢિયા, અઢિયા, દસા ને વીસા. એટલે કેવું કે એના માર્ક્સ મૂકે, આનો 1.5 માર્ક, આનો 2.5 માર્ક, આનો 10 માર્ક, તમને ખબર નહીં હોય. આ વિસા એટલે સૌથી વધુ ડેવલપ થયેલો ને વિસા કે. પણ યુનિટી હોય, યુનિટી હોય. આમ લડે ઝઘડે પણ આમ યુનિટી હોય ને યુનિટી. તમને ખબર નથી? અહીં પહેલેથી અહીંયા છે ને. કેટલા વર્ષોથી અહીંયા? ઓહ, હા, એટલે તમને ખબર ના. બાકી આ કેનિયામાં જે બધા હોય ને વિસા બધા બહુ આમ સારું ડેવલપ કરે, અને એ ભગવાનની વાત સમજવાની શક્તિ એ સારી, સાચી વાત સમજવાની શક્તિ સારી. તો પૂછજો તમે, પ્રશ્નો કર્યા, પ્રશ્નો કરવાની જગ્યા બધી. શું નામ તમારું? તારાબેન. તારાબેન, તમે યુગાન્ડા છોડીને અહીંયા આવ્યા એ વખત આવી ગયા છો નહીં? ઈદી અમીન વખતે? હા, એટલે એ તો બરાબર છે. એ વખતે તો છૂટકો જ નતો, આવી ગયા. પણ અહીંયા આવ્યા તો કે આ પેલા ભારત છોડીને યુગાન્ડા ગયા, યુગાન્ડા છોડીને અહીંયા આવ્યા. તો આપણા ફાધર મધર ગ્રેટ ગ્રાન્ડફાધર એક સમજવા માટે કે અહીંયા આવ્યા તો આપણને લાગે કે હવે અહીંયા સારું છે, શાંતિ છે, સારું છે, બધું લાગે છે. પણ અહીંયા આપણે રહેવાનું કેટલું? અહીંયા તમે કેટલા વર્ષ રહેવાના? 54 તો થઈ ગયા, બરાબર. એટલે બીજા કેટલા બાકી રહ્યા? 46 બાકી રહ્યા, 46 બાકી રહ્યા. 54 થઈ ગયા એટલે 100 નું કે ને, એટલે હજી બીજા 46 બાકી રહ્યા રહેવાનું. તો કે આ સમજવા માટે કે આ જગત અને જગતના બધા સંયોગો એટલા બધા ટેમ્પરરી છે ને, તો એ ટેમ્પરરીને આપણે પરમનન્ટ માનીએ છીએ, ટેમ્પરરીને પરમનન્ટ માનીએ છીએ. અને પરમનન્ટ માનીએ એટલે પછી અંદર ટેન્શન, ચિંતા, ઉપાધિ બધું ચાલુ થાય. આ દેહ પણ વિનાશી કહેવાય કે ના કહેવાય? આ બોડી છે, બોડી ઇઝ ટેમ્પરરી, બોડી ઇઝ ટેમ્પરરી. અથવા તો હું તારાબેન છું તો તારાબેન ઇઝ ટેમ્પરરી, બરાબર. એમનું લાઈફ સ્પાન હોય કે ના હોય? 100 years. તો પછી હવે જે 40 વર્ષ બાકી રહ્યા કે 35 વર્ષ બાકી રહ્યા, હું કહેવા શું માંગુ છું કે ઓલ ધીસ વર્લ્ડલી મેટર્સ બધું ટેમ્પરરી છે, બરાબર. એન્ડ અવર ટ્રુ સેલ્ફ ઇઝ પરમેનન્ટ. પણ તમે આખું જે જીવન જીવ્યા ને એ કોના માટે જીવ્યા? આ મારી જોડે કામ કરે છે ને, બરોડાની છે. બરોડાના? તો સારું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સમજાવ્યું કહેવામાં આવ્યું? તમે આખી જિંદગી જે કઈ કર્યું, નોકરી કરી, ધંધો કર્યો, ભણ્યા, અહીંયા આવ્યા, બધું કર્યું, બધું કોના માટે કર્યું? ના, એનું તારાબેન માટે કર્યું. તારાબેન ને તારાબેનના ફેમિલી માટે, બરાબર. પણ એ તો તારાબેન તો ટેમ્પરરી છે, અને તારાબેન નું ફેમિલી ટેમ્પરરી ખરું કે નહીં? તો તમે તમારા પોતાના માટે શું કર્યું? For your true self. ઘણું કર્યું. શું કર્યું? બે ચાર વસ્તુ બતાવો. બતાવું તો એમ કહું છું, ખબર હતી આ બધા મળશે. હા, બરાબર, સાચી વાત. એટલે આ તમને આ વાત કરી, મંજુભાઈને વાત કરી કે ભાઈ આ છે ને, તો તમે આવી ગયા ને, બરાબર. એ પોતાના માટે જ કર્યું ને,
એક સમજવા માટે કે આપણે જન્મ્યા ને ત્યારથી અત્યાર સુધી આપણે જે ટાઈમ આપ્યો ને, આપણે તારાબેન માટે ટાઈમ આપ્યો, તારાબેનના સુખ માટે ટાઈમ આપ્યો, તારાબેનના ફેમિલી માટે ટાઈમ આપ્યો, પણ આપણે પોતે જે છીએ એ તો જાણતા જ નથી, એટલે ટાઈમ કેમ કઈ આપીએ? સમજાય? આ સિમ્પલ વાત કે તારાબેન તમારું નામ છે, બરાબર? તમે કહો કે મારું નામ તારાબેન છે, એટલે હવે તમે જયારે કહો કે મારું નામ તારાબેન છે, એનો શું થયું કે તારાબેન તમારું નામ છે, તમે નથી. સમજાય તમને? આટલા બરોડાવાનું પૂછી લેવું પડે. શું નામ તારું? નીતા. નીતા. ક્યારે બરોડામાં? માંજલપુર. માંજલપુર. ઓ, માંજલપુર જગ્યા બહુ સારી નહીં? હું બરોડા જ આવતો હતો. હજી મકાન છે, પણ જવાનું ઓછું થાય, વર્ષમાં 1-2 વાર થાય. તો આપણે એક જ ગામ ના ને, એટલે પછી ધ્યાન રાખવું પડશે. ખ્યાલ આવે તમને? તો કે આ તારાબેન તમારું નામ છે, તમે કહો કે માય નેમ. હવે તમે જ્યાં મારું મારું કહીએ, આપણા દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ મારું મારું કહીએ, તે હું અને મારું બંને એક હોય કે જુદા હોય? જુદા હોય ને. આઈ અને માય બાય ડિફોલ્ટ દે આર ડિફરન્ટ. હું કહું કે આ મારું ઘર, તો ઘરથી જુદો થઈ ગયો. આ મારો ડ્રેસ, તો ડ્રેસ થી જુદો થઈ ગયો. તો હું જ્યાં જ્યાં મારું મારું કહું છું, કે મારું નામ, મારું ગામ, મારા મા બાપ, કે મારું ફેમિલી, મારો દીકરો, મારી દીકરી, મારો ભાઈ, મારી બહેન, મારો પતિ કે મારી પત્ની, બધાથી આપણે જુદા કરી. પણ લાગે શું? જીવીએ કેવી રીતે? કે બધા મારા જ છે, અને પાછું એને સાચા માનીએ કાયમના. છે ટેમ્પરરી, પછી ટેમ્પરરીને કાયમ પરમાનન્ટ માને, અને પરમાનન્ટ ને જાણે નહીં. એટલે કે હું આ તારાબેન છું, વાત ખોટી નથી, એક માન્યતા છે. તમારો જન્મ થયો એટલે પેલું જન્મ થાય ને પછી નામ આપે, નીતા નામ આપ્યું, પછી તને કોઈ બોલાવે નીતા નીતા, તું સામે જોઈ ખરી? ના જોયે. પછી મહિનો 1.5 મહિનો થાય ને પછી આમ જે આમ કે નીતા આમ કે નામ જોયે, એને થાય કે આમ મને બોલાવે છે. તો શું થયું? તો કે એની અંદર માન્યતા ઉભી થઈ. એ જન્મી, when you are born that belief was not there, પણ પછી આ ધીરે ધીરે માન્યતા ઉભી થઈ. એટલે તમે જૈન છો ને, એટલે જૈનની પરિભાષામાં વાત કરો તો ગૃહિત મિથ્યાત્વ કહેવાય. ગૃહિત મિથ્યાત્વ એટલે કે આ મિથ્યાત્વ હતું નહીં, પણ બહારથી ગ્રહણ કર્યું. એટલે કે હું તારાબેન છું, ખરેખર રોંગ બિલીફ છે. કારણ કે તમે તારાબેન નથી, તમે તારાબેન થી જુદા છો. સમજાય એ વાત છે? નીતા, તમે સમજાય? ખાસ તો આવું ધ્યાન રાખો, માંજલપુર ની છે ને, બરોડાની. પછી વાત તો તમારી સાચી છે. સમજાય છે ને? સમજાય તો જ કેજો. હા, મારે તમે મારી ઠોકીને સમજાવી દેવાનું ક્યાં. સમજાઈ દેવું પડે ને, આપણી બાજુના જ છે ને બરોડા. તો આ હું તારાબેન છું, એને દાદા ભગવાને રોંગ બિલીફ કીધી. બિલીફ ખરી, પણ કેવી? રોંગ. કેમ? તો ખરેખર તમે તારાબેન નથી, ખરેખર તમે તારાબેન થી જુદા છો, પણ અત્યારે તમારી બિલીફમાં, સ્ટોન્ચ બિલીફમાં બેસી ગયું કે નો, આઈ માય સેલ્ફ ઇઝ તારાબેન. એટલે તમે અત્યારે આખું જીવન તારાબેન થઈને જીવો છો, અને તારાબેન તમે છો નહીં, એટલે એને રોંગ બિલીફ કહેવાય. સમજાય? તો કે આને પાછું દાદા બહુ સિમ્પલ કરી નાખ્યું. દાદા ભગવાને શાસ્ત્રોની ભાષામાં વાત નથી કરી, સાદી સિમ્પલ લેમન લેંગ્વેજમાં વાત કરી છે. લેમન લેંગ્વેજ. એટલે એમને શું કીધું કે હું તારાબેન છું, એ ફર્સ્ટ રોંગ બિલીફ. પછી હું આ ગામની છું, હું આટલી ઉંમરની છું, હું આની દીકરી છું, હું આની મધર છું, હું આની સિસ્ટર છું, હું આની આંટી છું. તો કે બધી બીજી બધી રોંગ બિલીફો પછીથી ઉભી થઈ ને, એટલે સબઓર્ડિનેટ રોંગ બિલીફ. તો કે આ બધી રોંગ બિલીફ છે. હવે તમારે જો મોક્ષે જવું હોય
તો બધા લોકો એવું કે આ સંસારનો ત્યાગ કરીને હિમાલયમાં જઈને બેસી જવું પડે. તો ના, એવું નથી. મોક્ષે જવું હોય તો રોંગ બિલીફ તૂટવી જોઈએ. રોંગ બિલીફ ફ્રેક્ચર થાય, તમે ખરેખર જે છો એ સેટ થાય એટલે મોક્ષે જાઓ. સમજાય વાત છે? એટલે કે અત્યારે જે બિલીફ છે કે હું તારાબેન છું એ તૂટે ને તમે ખરેખર જે છો એ બેસે એટલે તમારું કામ થઈ ગયું. આવી સિમ્પલ વાત છે. સમજાય? અને આ વાત ના સમજાય ત્યાં સુધી શું હોય, એક જગ્યાએ એવી રાખવી, કોઈ આવે ને ઉભા કે ઉપાય એને સારું લાગે ને, તમને કસરત થઈ જાય. થોડી વાર ઉભા થવાનું બેસો, ઉભા થવાનું બેસો ને તો બંનેને ફાયદો થાય. ત્યાં શીખેલી છું, તમારા સત્સંગમાંથી જ શીખેલી છું કે બે જગ્યા લઈ લેવાની, પછી કોઈ એવી વ્યક્તિ આવે તો એવું એને લાગે કે મને રિસ્પેક્ટ આપવી છે. શાંતિ ના, એટલે વ્યવહારમાં એ સમજાય. એટલે આપણે જે વાત કરતા રોંગ બિલીફ, તો કે આ રોંગ બિલીફ ફ્રેક્ચર થાય અને આપણે ખરેખર જે છીએ એ સેટ થાય એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. અને એ કામ ના થયું હોય ત્યાં સુધી શું કરવાનું એ પાસે સમજાય? વચ્ચેનું કોઈ પગથિયું જોઈએ જ ના જોઈએ. કે સીધું તો આપણે કોઈ મોક્ષમાં બેહાડે નહીં, એટલે વચ્ચેના પગથિયાં આવી ગયું. વચ્ચેનું પગથિયું એટલે શું કે આપણે સવારે તમે ઉઠો, જે પણ ભગવાનને માનતા હો એની પાસે 5 વાર શક્તિ માંગી લેવાની. કયા ભગવાનને માને છે? ગણપતિ બાપા. તો મારે છે ને લાગ્યું. એટલે ગણપતિ બાપાને માને છે ને એટલે તારે ગણપતિ બાપા પાસે ઉઠતાની સાથે 5 વાર શક્તિ માંગવાની. હું એકવાર બોલજો. પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો. સિમ્પલ છે. આમાં કોઈ ધર્મની વાત નથી. આ યુનિવર્સલ પ્રેયર કહેવાય. કોઈ પણ ધર્મની વ્યક્તિ, પછી ક્રિશ્ચિયન હોય, પારસી હોય, મુસ્લિમ હોય, કોઈ પણ હોય, એ આ શક્તિ માગી શકાય. યુનિવર્સલ પ્રેયર કહેવાય, બધાને લાગુ પડે. તો કે આ શું કરવાનું કે સવારે ઉઠે ને તો બેડમાં 5 વાર શક્તિ માગી લેવાની, હાર્ટીલી, દિલથી, સિન્સિયરલી. અને અંદર નિશ્ચય કરવાનો કે આખા દિવસમાં મારે કોઈને દુઃખ આપવું નથી. સમજ્યા? અંદર યોર ડિટર્મિનેશન વિધિન કે I don't want to hurt any living being during the whole day by my thoughts, by my speech or by my action. આટલું શક્તિ માગી લેવાની. હવે સોલ્યુશન ફાવશે બેટા? આટલું ફાવે ને? આટલું આપણે કરી લઈએ. પછી રોજ રાતે આપણે સુઈ જઈએ કે ના સુઈ જઈએ? ક્યારેક ભૂલી જાય, બહુ કામ હોય ના ભૂલી. રાતે સુતા પહેલા જોઈ લેવાનું કે આખા દિવસમાંથી 2-3 જણ હર્ટ થઈ ગયું, કોઈને દુઃખ થઈ ગયું, એવું કંઈક થયું હોય તો બધા જીવ માત્રમાં ભગવાન ખરા કે નહીં? એવું તો આપણે હિન્દુસ્તાની માનીએ ને કે જીવ માત્રમાં ભગવાન છે. અને પછી એવું કે આત્મા સો પરમાત્મા. તો જે વ્યક્તિને દુઃખ થયું ને એની અંદર જે ભગવાન છે ને, એની અંદર આત્મા છે, શુદ્ધ આત્મા છે, શુદ્ધાત્મા ભગવાનની મનમાં માફી માગી લે. આટલું કરી લેવું. આટલું ફાવે કે ના ફાવે? આટલું ફાવે કે ના ફાવે? હા, ફીલ ફ્રી, બરાબર બેસો. આપણે કલાક બેસવાનું છે, પછી પગ દુખી ના જાય. તો કે આટલી 5 વાર શક્તિ માંગવાની અને રાતે આવું માફી માંગીને સુઈ જવું. માફી એટલે તમારે પ્રતિક્રમણ.
અમને પેલું અઘરું લાગે પતિ કરવાનું, એટલે કે માફી માંગીને સુઈ જવું. બરાબર, ફાવશે આટલું? કરશે ને? તો અહીંયા જે છે ને એટલે ફરી બીજા વર્ષે મળશે ને, એટલે હું પછી એક ચેક કરી લઈશ કે કરે છે કે નથી કરતી. થોડો સ્ટ્રિક્ટ ટીચર જો, એટલે આમ ધ્યાન રાખજો. હું નહીં બોલું હવે. હા, ગમે તેમ કઈ પકડીશ પછી કે ભાઈ આ પ્રાર્થના કરી કે ના કરી. બરાબર ને? તમે મને કરજો. હા, એટલે હું આ બેને વાત કરી એવું નહીં આમ. પેલા ક્યાં છે મમ્મી? ક્યાં જતા રે? તમે ત્યાં બેસી જાઓ. ના ના વાંધો નહીં. કેવું ને, આ થોડી ખુરશી આગળ લઈ લો તો મોઢું દેખાય, મને ખબર પડે તમને મારી વાત ગમે છે નથી ગમતી. એટલે મારા ઘરે છે. હા, તમે તમારે બેહું આઈ, જોડે આઈ. તમને બેસી જાઓ. બેસી જાઓ તમે. દાદા જોડ જતા રહો. હા, ત્યાં જતા રહો. हाँ आप जाओ ये। पीछे बस जरा आगे ही बैठना। यहाँ ऐसा नियम है जो लेट आते हैं उनको आगे बिठा देते, मगर आप लेट नहीं आए, टाइम पे आए। तो भाई हिंदी में बोलूं पड़ता नहीं बात। मुझे भी हिंदी थोड़ा थोड़ा आवड़ता है। आप लोगों के आने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप यहाँ कनाडा आए हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार में सुखी होने के लिए रहते हैं कि दुखी होने के लिए? सुखी होने हाँ, जरा जोर से बोलो। हाँ, सुखी होने के लिए आप तीनों, सब मगर आप तीनों के साथ भी बात करता हूँ। तो सुखी होने के लिए मैंने सबको भी एक मास्टर की बताई। तो आप थोड़ा 2 मिनट लेट आए तो थोड़ा रिपीट कर दूं, नहीं अच्छा रहेगा ना? आपको भी चाहिए ना, सुखी तो होना ही ना। पर सुखी कैसे हो सकते हैं? पैसा मिलता है तो भी हो सकते हैं, कि घर मिलता है तो हो सकते हैं, कि अच्छी कार मिली तो हो सकते हैं। सुखी कब हो सकते हैं? कि अच्छा हस्बैंड मिल गया तो हो सकते हैं। ये ज्यादा ज्यादा है। हाँ, ये ज्यादा है। सही बात है, ये ज्यादा है। एक समझने के लिए ये संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको सुखी कर पाए, मगर आपके पास सही समझ है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट विजन, देन यू कैन रिमेन हैप्पी इन ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अच्छा है आपके पास पैसे है, अच्छा मकान है, अच्छी कार है, अच्छा पति है, अच्छी बात है, मगर सही में सुख कब आएगा? तो पति कितना भी अच्छा है ना, आपको पूरे साल तक आपकी संभाल करता है, प्रेम से रखता है, आपको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और एक बार कुछ बोल दिया ना तो सब सुख चला जाता है। तो जो चला जाए उनको सुख कैसे बोल सकते हैं? टेम्पररी हो गया। तो संसार में रहकर सुखी होने के लिए ये दादा भगवान ने एक चाबी बताई थी, सिंपल चाबी थी। क्या करने का आपको कि सुबह में जब उठते हैं आप जो भी भगवान को मानते हैं, और भगवान को नहीं मानते तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गिव यू दैट मास्टर की। आप तो मानते हैं भगवान को, हाँ, कोई नहीं मानता है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नीता हो ना कोई को ना मानते हुए, तो आपको क्या करने का, सुबह में उठते ही बेड में से निकलने से पहले ही आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके बाद 5 बार शक्ति मांग लेना। मैं बुलाता हूं, एक बार रिपीट कर। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। सिंपल है, इतना तो याद रहेगा। नहीं तो कृष्णा को बोल देना, वो आपको लिख के दे देगी। इतना सिंपल है। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। अरे कृष्णा, वो लास्ट टाइम वो मिली थी, वो नहीं आई। रितु जी इंडिया गए हैं। हमको क्यों जाने दिया? मैं यहाँ आने वाला था। તમે આવવાના હતા મને પહેલા ખબર નથી હા, તો મારી ભૂલ એ છે. એપ્રિલ માં જતા રહ્યા. हाँ, हमारी भूल थी। क्या नाम था उनका? રીતુ रितु। उनको अच्छा है, समझ में अच्छा है।
मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने बोला आई मिस कृष्णा नेक्स्ट टाइम। मैं कह रही यार हाँ। जुलाई में वापस आएंगे, तब हाँ। तक वो वापस आ हाँ, जाएंगे। जुलाई में आएगा कोई। कोई आएगा। हाँ नहीं आएगा, जुलाई में भी आएंगे। आई थिंक कांति आंटी बिहार इंजीनियर तो मैं सांझ जाएंगे, कोई तो आएगा। तो इतनी शक्ति मांग सकते 5 बार, सिंपल है ना। मैं आपको सुखी होने की चाबी बता रहा हूं, संसार में रहकर सुखी होना है, तो ये सिंपल चाबी बता रहा हूं। तो 5 बार शक्ति मांग लेना, एंड देन यू डिटरमाइन विद इन, यू रिजॉल्व विद इन कि मुझे किसी को दुख देना नहीं है, कि आई डोंट वांट टू हर्ट एनी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड बाय माय थॉट्स, बाय माय स्पीच और बाय माय एक्शन। इतनी 5 बार शक्ति मांग लेना। मांग पाएंगे ना? कर सकते हैं? आपको डर नहीं लगेगा ना कि बच्चे कोई ऐसा करे तो दुख तो देना चाहिए ना, अटैक तो करना चाहिए ना, ऐसा नहीं। क्योंकि आप पंजाबी है, हाँ तो पंजाबी तो सामने अटैक कर देंगे ना। और फिर रात को जब सो जाते हैं तो सोने से पहले जरा देख लेने का कि सारे दिन में जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया है। It may happen that you hurt somebody knowingly and unknowingly. तो किसी को भी दुख हो गया तो रात को सोने से पहले 2 मिनट देख लेने का। किसी को दुख हो गया तो उनके बीता भी भगवान है कि नहीं है, तो उनके बीता जो भगवान है उनकी माफी मांग लेना। अगर मतलब पता ही नहीं चला तो दुख दे दिया तो? अब चलो आप मुझे नहीं पहचानते, बराबर है। आप यहाँ आए, आपने मुझ पे गुस्सा कर दिया, तो आप भले मुझे पहचानते नहीं, मुझे आपको ख्याल में तो रियलाइज होगा ना कि भाई ऐसा फिगर थी, ऐसे थे और मैंने ऐसा अपमान किया था। भले पहचानते नहीं है, बस ख्याल में अपमान ना किया हो, किसी को वैसे ही कोई आपकी बात कही हुई हर्ट कर दी जाए। हाँ, तो आपको पता चला इतना कर लेना। मैं आपको टेंशन में डालना नहीं चाहता हूं। मैं क्या बताऊं कि आपको पता चला कि मुझसे उनको दुख हो गया, इनके लिए माफी मांग लेना। और पता नहीं चला तो चलेगा। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि हमने जो बोला हुआ है, राइट, हमें भी सही लगता है, बट सामने वाले को पता ही तो नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता पता है, ही नहीं चलता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन भी नहीं होता है, हाँ, उनको हर्ट करने का इंटेंशन ही नहीं होता है, तो उनको लगता है ऐसा क्यों बोला, ऐसा होगा वैसा होगा इसलिए ऐसा बताया। उनका बहुत चक्कर चलता है। तो ऐसा हो सकता है, मगर बाय चांस आपको पता चला कि मेरा इंटेंशन नहीं था फिर भी उनको दुख हुआ, तो उनको दुख हुआ ना, उसके लिए माफी मांग लेने का कि भले मुझे आपको दुख देना नहीं था मगर आपको दुख हुआ ना, भले आपकी गलत फहमी है जो भी है, मगर दुख हुआ ना, क्यों माफी मांगने का कि ये संसार में हमसे किसी को भी दुख होता है ना, तो सामने वाला भीतर माइल्ड और स्ट्रांग वे में रिवेंज की भावना रखता है कि मैं भी देख लूंगा। तो जो बैर बनता है ना, फिर उसके कर्म बन जाते हैं। तो ये जन्म नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कितना बीतेगा फिर भी आपका इंसल्ट करता रहे। तो क्यों ऐसा करता है? पीछे का रिएक्शन है। आप उनका कितना भी टेक केयर करें, वो आपको दुखी देते रहेंगे। ये क्या है, ऐसा क्यों? तो आदमी गलत है? तो नहीं, आदमी गलत नहीं है, वो पीछे की अपनी गलती अभी सामने आई, क्या है? तो ये माफी मांगने से ये जो ऋणानुबंध का भारी हिसाब है वो टूट जाता है। तो उसके लिए रात को माफी मांग के सो जाएंगे, चलेगा नहीं? इतना सिंपल करेंगे। ये अकेले हाँ बोलते हैं, दूसरे तो हाँ नहीं बोलते। मैं सोच रही हूँ कि उस बंदे को तो पता नहीं कि हमने उनसे माफी मांगी, वो फिर भी वो बदले की हाँ, बात। बहुत अच्छी बात है, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। पर सही बात है कि उस बंदे को पता ही नहीं है कि आपने माफी मांगी। मैंने क्या बताया आपको, किसकी माफी मांगने की है? जो बंदे को दुख हुआ उनके भीतर जो भगवान है उनकी माफी मांगने की है। और भगवान को याद करके आप माफी मांगेंगे ना, डायरेक्ट डाइटिंग हो जाएगा। आगे बताओ आपको, मानो आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, मान लो, और आपको उनके साथ कुछ ज्यादा हो गया है, अंटस हो गया है, ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। अभी आप यहां बैठे बैठे उनके भीतर जो भगवान है उनकी माफी मांगते रहेंगे ना,
तो जब आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद इंडिया जाएंगे, उनको मिलेंगे नहीं, तो उनका डीलिंग आपके साथ चेंज हो जाएगा। इतनी इफेक्ट होती है। ये तो अपना हिंदुस्तान का बहुत बड़ा साइंस है, और ये बात सिंपल बात है, साइंटिफिक बात है। कनाडा से गए हुए बंदों की पंजाब में अगर कोई पहचान है तो वो ऑटोमेटिकली सब भूल जाते हैं। ना भूल नहीं जाते। नहीं, वो सब उनको फोन दिखना चाहिए या लैपटॉप दिखना चाहिए कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ या आई हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, वो सच्ची बता रही ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। पंजाब में ऐसा ही है। इतने सस्ते में हो जाता, बहुत अच्छी बात है। पंजाब में ये लोगों की भावना है ऐसे। पर जनरली क्या होता है कि आपसे किसी को दुख हुआ, नहीं हर्ट हुआ, आपको किसी से झगड़ा हो गया, उसने आपका अपमान किया, आपने उनका अपमान कर दिया, तो फिर वो 5 साल 10 साल के बाद भी अंदर रहता है। भले आप बाहर से व्यवहार अच्छा करेंगे, बाहर से खुश दिखाई देंगे, और लेडीज को तो स्पेशली नहीं भूल सकते। मानो कि आप किसी आपके रिश्तेदार की शादी में गए और वहां आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, तो फिर आपके घर पे कभी शादी होगी, वो आएंगे, आपको सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भूल नहीं पाएंगे। ये तो बाहर से सब खुशी बताते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं तो हाँ अच्छा थैंक यू तो बोलना पड़ता है, नहीं तो दूसरी बार लाएंगे नहीं। सही बात है। हाँ, ये समझने के लिए कि आपको ऐसा इतना कर, और ये बात जो है ना मेरी, ये दादा भगवान ने बताया था, और बहुत साइंटिफिक बात है। साइंटिफिक मीन्स एवरीवेयर एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। आप हिंदू है, आपको भी एप्लीकेबल हो जाती है, और कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, उनको भी प्रैक्टिकल हो जाती है। एक्चुअली मैं आपको बताओ ये स्टोरी कैसे हुई, बात कैसे निकली थी। 8-10 साल पहले मैं सत्संग के लिए, मैं फुटबॉल जैसा हूँ, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल होता है ना, तो यहाँ किक मारते उधर जा, उधर से उधर, ऐसा मैं भी ऐसा कहीं घूमता रहता हूँ। तो मैं जर्मनी में था, एसन में, तो वहां सत्संग था, और वो भी अफगानी हिंदुओं के साथ। फिर वो सत्संग शुरू करने का था, उसके पहले एक भाई आए, मुझे आके पूछा कि स्वामी जी आप वापिस फ्रैंकफर्ट जा रहे? कहा जा रहा हूँ। क्या आप ट्रेन से जाने वाले हैं? हाँ ट्रेन से जाने वाला हूँ। तो क्या आपको हरकत नहीं है? तो हम 2 ही है और मेरी कार में जगह है, और मैं भी सत्संग के बाद तुम फ्रैंकफर्ट ही जाने वाला हूँ, तो आपको जहां जाना है वहां आपके घर, आपको जहां भी है आपका स्टे, वहां छोड़ दूंगा। तो मैंने भी सोचा कि अच्छी बात है नहीं, क्योंकि मैं तो गुजराती हूँ, पक्का बनिया नहीं हूँ, मगर ऐसा बता रहा हूँ। तो मेरा सब काउंट हो गया कि मेरा 16 यूरो का टिकट बच जाएगा, और ये राइड देगा और घर तक छोड़ जाएगा, तो अच्छी बात है। मैंने तो हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है। फिर वो 5 से 7 का सत्संग था। फिर उसने बताया, तो मैंने सोच लिया कि 5 से 7 तो 8 बजे निकलेंगे, क्योंकि मैं ट्रेन सत्संग के बाद निकलू 7 बजे, तो 8 बजे की ट्रेन मिल जाए, 10 बजे तक तो पहुंच जाता था। तो मेरे पास बराबर है, फिर वो आएगा तो वो 7:30 निकल जाएंगे, 7:50 निकल जाएंगे, तो ऊपर से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैंने बोला अच्छा है, मेरा पैसा भी बच जाएगा, तो रास्ते में थोड़ी बातें भी करेंगे सत्संग की। मैं तो सब जगह प्रॉफिट देखता हूँ, आप लोग नहीं देखते, मैं ही देखता हूँ। कहाँ प्रॉफिट होता है नहीं देखते। हाँ, आप जॉब करते हैं तो नहीं देखते कहाँ ज्यादा सैलरी मिलेगी तो छोड़ के चले जाएंगे, कि सेट अच्छा है तो बैठेंगे, वही रहेंगे। अरे सेट कितना भी अच्छा है ना, हम निकल जाएंगे। हमारा सेट यही बैठा है। अरे मेरी गलती हो गई। समझने के लिए तो उन्होंने बताया, फिर हम लोग निकले 7 बजे। तो अभी तो हाईवे पे चढ़े भी नहीं थे, सिटी में ही थे। उसने दूसरी एक बात की कि स्वामी जी आपको हरकत दी। तो मेरा एक फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी में 12 साल पहले साथ में पढ़ते थे, तो उनका आगे इंटरसेक्शन पे उनका मकान है। तो उसने मेरी आज उनसे बात हुई, उसने मुझे चाय पीने के लिए इनवाइट किया है, तो इफ यू डोंट माइंड आधा घंटा जाएगा। तो मैंने सोचा इंडियन है, आधा बोलता था, 1 घंटा काउंट करो। तो मेरे पास 7:15 निकले, 9:15 को पहुंचने वाले।
तो 10-10:30 पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, ओके। ऊपर से राइड भी मिलेगी और चाय भी मिलेगी। बराबर? तो मैं क्यों ना बोलूं? फिर उसने आगे बताया, अरे कि वो इंडियन नहीं है। तो मैंने सोचा चाय ही पीना है, चाय पे थोड़ा लिखा है कि जर्मन चाय है कि ब्रिटिश चाय है कि इंडियन चाय है, पी लेंगे। फिर गए तो उसने अपने फ्रेंड को बताया कि आई एम कमिंग एंड विथ मी माय स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑल्सो कमिंग। एनी लैंग्वेज में उनके अपनी लैंग्वेज में बताएगा ना कि माय स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑल्सो कमिंग। तो वो उसने कुछ उनको बोला, मुझे समझ में नहीं आया। फिर रास्ते में उसने मुझे बताया कि उनको धर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं। फिर हम गए उनके घर पे, वो दोनों आ गए बाहर, हस्बैंड वाइफ अबाउट 28-26 के थे, यंग थे। अच्छी तरह से ग्रीट करके घर में लेके गए, सोफा पे बिठाया। फिर वो चारों और जर्मन में बात करते थे। जर्मन तो मुझे आती नहीं है, तो ऊपर से जाता था, तो मुझे तो सुनते देखते रहने का नहीं। फिर वो लोग ऐसा सामने वॉल थी ना, कारपेट पे नीचे चारों बैठ गए और बातें करते थे। और उनका जो लड़का था वो पहले मेरे पास आया और मुझे बताया कि वी बोथ आर Christian, but we don't believe in religion. We both don't believe in religion. So please don't talk anything religious with us. अभी ऐसा उसने, अभी मैं उनके घर पे गया हूँ, मैं उनका गेस्ट हूँ, ऐसी बात कर कितना इंसल्टिंग लगे कि नहीं लगे? मुझे तो हो गया चलो उठ के चला जाओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने बोला कोई बात नहीं, आई विल टॉक एवरीथिंग साइंटिफिक टू यू। तो खुश था, फिर जाके बैठे। फिर आधा घंटा हुआ तो थोड़ा आगे पीछे होने मुझे लगा अभी चाय बनाने के लिए जाएंगे। बराबर कि अभी चाय बनाने के लिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी उनके घर पे आए हैं, उनकी चाय पियेंगे, इतना बैठा है तो उनको कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। हम आपके घर पे आए तो आपको कुछ फायदा तो होना चाहिए, ऐसी भावना तो रहती है ना, हम हिंदुस्तानी है। तो मैंने सोचा अभी जो मैं बात नहीं करूंगा तो वो चली जाएगी और फिर चाय पी के निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूं, अंदर दिमाग तो चलता है ना। तो मैंने सोचा कि ही टोल्ड मी इन ब्लैक एंड व्हाइट कि we don't believe in religion, please don't talk anything religious with us. So I have also right to ask you in black and white. तो मैंने उनको सीधा पूछा कि if you don't mind, I want to ask you one question. दोनों ने बताया कि ठीक है। तो मैंने बताया why you don't believe in religion? तो उन्होंने क्या बताया कि we both are born Christian and we were attending mass regularly, but we observed that it's a big business. So now I don't believe in Christianity, I don't believe in God. तो मैं समझ गया कि ये सब जो देखता है देख के ऐसा हो गया। तो मैंने फिर क्या किया, उनको बताया कि you know my master Dada Bhagwan, what he says that in business ethics must be there. वो आपके लिए बात है, वो दोनों के लिए नहीं। In business ethics must be there, but in religion there should not be any business. ये दादा भगवान का एक वाक्य है कि धर्मों में व्यापार में धर्म होना चाहिए, मगर धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। तो दोनों को बहुत अच्छा लगा। तो 15 फुट दूर बैठे, 5 फुट नजदीक आ गए। तो मुझे भी हुआ कि अभी लोहा गर्म हुआ है, आगे बात कर सकते हैं। तो हम भी एक ग्रेडी है ना, लगता है कि जो कोई बात सुनता है सुना, कोई सुनने वाला मिलता अच्छा लगता है, बोलने वाले को अच्छा लगता है। आज तो आपको सुनना भी पड़ेगा ना। तो फिर आगे आए तो मैंने ऐसा जैसा आपको पूछा ऐसा उनको पूछा कि यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो दोनों ने रॉब से बताया यस। तो अभी मैं भी सोच रहा अभी क्या बोलूं आगे। फिर मैंने बताया कि आई कैन गिव यू वन मास्टर की, बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्पेयर 5 मिनट्स डेली। तो दोनों कॉन्फिडेंस के साथ बोल यस वी विल डू।
तो मैं भी समझ में अभी सोचता क्या करना, फिर ये सेंटेंस उनको दिया था, आई नो दैट यू डोंट बिलीव इन गॉड, बट डू यू बिलीव इन मदर नेचर? तो दोनों ने बताया हाँ वी डू बिलीव। तो मैंने बोला इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू जस्ट आस्क फॉर द स्ट्रेंथ फ्रॉम द मदर नेचर दैट गिव मी द स्ट्रेंथ सो दैट आई डू नॉट हर्ट एनी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड बाय माय थॉट्स, बाय माय स्पीच और बाय माय एक्शन। तो वो लड़की थी ना, वो बहुत रिजिड थी, धर्म के एकदम अगेंस्ट में हो गई थी, उनको जो अनुभव भी हुआ ना। तो बोलता है दिस इज नॉट रिलीजियस, दिस इज लॉजिकल। ओके आई विल आंसर, नॉट रिलीजियस बट लॉजिकल। तो मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ इतना करते वहां बोलते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा आगे भी बता दूं। तो आगे जो आपको माफी मांगने का बताया ना, वैसे उनसे बात की कि इन द नाइट व्हेन यू स्लीप जस्ट लुक ड्यूरिंग द होल डे व्हाट हैपन है, इफ यू हर्ट एनीबडी नोइंगली अननोइंगली यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो लड़की एकदम ये हो गई, उनको हुआ कि माफी मांगना हो तो धर्म हो गया, धार्मिक बात हो गई। तो बोलते हैं कि आई एक्सेप्ट दैट आई हर्ट समबडी बट व्हाई टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, व्हाई टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो मैं भी सोच में पड़ गया ये कैसा प्रश्न करती है। आप कभी ऐसा प्रश्न करेंगे कि गलती हुई माफी क्यों मांगने की? कभी नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी है ना, तो ऐसे सोच ही नहीं आएगी। अभी मैं भी वो बोलती है कि यू गिव मी साइंटिफिक आंसर। मेरा शब्दों से पकड़ लिया था कि साइंटिफिक। अब उनको क्या बोलने का कि माफी मांगना साइंटिफिक है, रिलीजियस नहीं है, ऐसा वो जानना चाहती थी। अभी क्या बोलने का उनको? मीता हालत बिगड़ जाए। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न ही नहीं करते। और वो जर्मन लड़की थी और ऐसा प्रश्न कर रही। फिर एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ, तो मैंने बताया उनको, बोला इससे इफ यू हैव गॉन समवेयर फॉर कैंपिंग फॉर द होल डे एंड इन द इवनिंग इन द नाइट व्हेन यू विल कम बैक टू योर होम व्हाट यू विल डू? तो उसने बोला कि आई विल टेक शावर फर्स्ट। ओके, बट व्हाट यू विल डू विथ योर ड्रेस? हाउ? Where is it? What you will do with your dress? Okay, I will put it in the laundry bag. So why you will put in the laundry bag? Why you will not put back into the hanger? तो क्या बोलती है? No, I wear it for the whole day. I did camping. I wander around all that thing. So it will get dirty. तो मैंने बोला same thing applies here. So she stared at me. मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने बताया कि during the whole day when you hurt somebody knowingly or unknowingly, your inner dress is getting dirty. Your not outer dress, inner dress. And this is the laundry. When you are asking for apology, it's a laundry to clean your inner dress. तो मैं okay, now I will do it. फिर वो गई किचन के दरवाजे तक गई, वापिस आई, फिर वापिस आई और एकदम नजदीक आके बैठ गई। और ऐसा आवाज उनकी बहुत जोरदार थी, झगड़ा करते ऐसा बोलती थी। वे बोलते यू आर टेलिंग मी दैट यू विल नॉट टॉक एनीथिंग रिलीजियस, यू आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग रिलीजियस, बट यू ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू विल टॉक एवरीथिंग साइंटिफिक। In the morning I do this prayer, I ask for the strength, and in the evening I ask for the forgiveness. Where is the science? કે માથા ભારે કહેવાય ના કહેવાય? તારાબેન માથા ભારે કહેવાય ને? આવું કોઈ પૂછે આપણે કેટલા ડાયા છે નહીં? અમે आप लोग कितने अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न नहीं करते। अभी उनको क्या बोलना, फिर बोलते हैं गिव मी साइंटिफिक आंसर। फिर मैंने उनको बताया कि यू नो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, पता है आपको? चीजें वापस आती हैं। हाँ बराबर। Actions and reactions are equal and in opposite direction. तो मैंने बताया कि this Newton's third law is scientific law. तो she said yes, scientific. फिर मैंने पूछा any scientific law is universal? तो she said yes, universal. तो मैंने बोला same universal law is it applies here also.
तो अगेन शी स्टेयर्ड एट मी, तो मुझे आया कि अभी भी उनको समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उनको बताया कि इन द मॉर्निंग व्हेन यू आस्क फॉर द स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर एक्शन इन मदर नेचर? Your action in mother nature is that I don't want to hurt any living being. And in the evening you are asking for apology, means it is your sincere action. So what will be the reaction? So as a reaction, mother nature will give you such circumstances that nobody will hurt you. And when nobody will hurt you, what will remain with you? Happiness. So this is a simple master key of happiness. तो आप दूसरी बार मिलो ना, वहां तक ये रखना, करना, करेंगे ना, ये तो करेंगे ना। हाँ, अभी तो कृष्णा तो जॉब छोड़ दिया ना। हाँ, आप अगर फिर भी आपको मैं पकड़ लूंगा कहीं एवरी ईयर आता हूँ, तो मैं चेक कर लूंगा। बुलाएगी ना? हाँ, वो बुलाएगी तो, हाँ बराबर है, कृष्णा बुलाएगी ना नेक्स्ट ईयर। बुलाएगी ना? हाँ, मैंने होमवर्क दिया है, मुझे चेक करने का है। क्या? हाँ, बुलाना हर बार मैंने उनको बोला हुआ है मुझे ग्रुप में से अभी निकालना मत। तो अभी मैं मैसेज करती हूँ। हाँ, बराबर। तो ये करके देखना, इट्स अ रियली सिंपल थिंग, सो सिंपल। तो हमें लगता है इसमें क्या है, क्योंकि हम हिंदू है ना, हिंदुस्तानी, तो हमें लगता है इसमें क्या है, बट इट्स रियली साइंटिफिक। और क्या हुआ था, वो 1-1.5 महीने के बाद उनका व्हाट्सएप पे फोन आया था, वो दोनों का। तो सब बताया, हम बहुत खुश थे, बहुत आनंद है। तो मैंने पूछा उनको कि मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था, यू डूइंग इट डेली? तो दोनों ने एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हाँ हम करते। तो मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है ना, मैं तो इंडियन हूं ना, कि आप लोग बोले हाँ मैं करती हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, आप बोलती है मैं करती नहीं होगी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ ना, तो मैंने पूछा कि हाउ मेनी डेज यू मिस्ड इट? तो दोनों ने बोला नॉट ए सिंगल डे। ये लोग सिंसियरली करते हैं। ये जर्मन लोग कैसे, व्हाट दे स्पीक दे मीन इट, उनके दिल में है ना, वैसा ही बोलेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे जब मैं गया, तो वो दोनों नहीं आए सत्संग में। फिर वो लड़की ने मुझे फोन पे बताया कि उनके पेरेंट्स आए, सो दे आर बिजी एंड दे विल नॉट बी एबल टू कम। फिर वो लड़के से बात हुई, लड़के को मैंने पूछा कि आप 1 साल से कर रहे, आपको कुछ फायदा हुआ? तो लड़के ने क्या बोला, यस आई एम बेनिफिटेड। तो क्या बेनिफिट हुआ? तो उसने बताया कि बिफोर इफ आई हैव टू डू एनीथिंग, the first thing that what will happen, the negative thought will strike my mind, and now day by day I am becoming more and more positive. तो मेरे को चलो अच्छा हो गया। और लड़की को पूछते कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मुझे डर लगता है कुछ कैसा नया निकालेगी। तो कुछ नया पूछेगी। हाँ, तो मैंने बोला उनको तो पूछना ही नहीं है, और वो सामने से आई, मुझे बोला आई एम ऑल्सो बेनिफिटेड। और वो लड़की थी ना, ऐसे थी अबाउट 26, मगर एकदम पतली थी, अबाउट 42-44 केजी, एकदम स्किनी, 18 की लगे ऐसे। तो मुझे तो पहले ऐसा था कि उनको इतना डेवलप जर्मन है, वो इतना अपनी बात कितनी समझ में आएगी। वह जिस तरह से आर्ग्यूमेंट कर रही थी ना, तो मैंने सोचा भी, तो फिर मैं ठीक है बताओ आपको क्या फायदा हुआ। तो मुझे बोलते माई इनर स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये लड़की बोल रही कि माई इनर स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज, वो समझ के बोल रही है कि बिना समझ के बोल रही है? क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस बाकी शब्द है ना, इनर स्ट्रेंथ। तो मैंने पूछा उनको धीरे से कि व्हाट यू मीन बाय इनर स्ट्रेंथ? तो उसने क्या बताया कि बिफोर इन स्मॉल इंस्टेंसेस आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब, एंड नाउ एनीथिंग हैपेंस आई डोंट गेट डिस्टर्ब। बहुत बड़ी बात है। तो ये जर्मन लोग हैं, इनको इतना फायदा होता है, तो आप तो हिंदू हैं, आपको तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। करके बताना, प्रूव करके बताना। मैं आऊंगा नेक्स्ट ईयर, मैं तो विंटर में भी आ जाऊंगा। हाँ, ये बोल रहे थे विंटर में क्यों नहीं आते, ये सुस्ती मुझे बोल रही विंटर में क्यों नहीं आते। विंटर में आते अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है विंटर में।
तो अभी आप पूछो आगे, बात समझ गई, ख्याल में आया आपको? अभी देखो, आप भले आप कैनेडियन हो गए, मगर ऐसे तो आप हिंदुस्तानी सनातन धर्म में मानने वाले हैं, बराबर है? सनातन धर्म, एंड यू नो व्हाट इज सनातन धर्म? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म किसको बोलेंगे? भगवान में विश्वास करते हैं। भगवान में विश्वास रखते हैं? नहीं, वो तो बराबर है, भगवान में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर कौन सा भगवान में विश्वास रखते हैं? मान जो भी है, राम है, कृष्ण, कोई भी है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो भगवान में आप विश्वास रखते हैं वो आप सिर्फ मानते हैं कि आपने भगवान को पहचाना है। मेरी बात समझे? मैं आपको ऐसा ये नहीं करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि आप भगवान में विश्वास रखते हैं, 100% करेक्ट, आई डू एग्री, बट आप माने हुए भगवान में विश्वास करते हैं, पहचान कर, भगवान को पहचान कर विश्वास नहीं है। पहचाना है आपने भगवान को? आपने नहीं, आपने पहचाना? तो यहां तक, कनाडा तक आए, भगवान को नहीं पहचाना? इंडिया छोड़ के यहां तक आए। भगवान तो एक ही होता है। God is one. हाँ, भगवान तो एक ही होता है। भगवान एक ही होता है, बस ऐसा बोलने से भगवान की पहचान हो गई? ऐसा नहीं, बट फिर भी कोई भी मान लो, बट भगवान तो एक ही है, सब में एक ही होता है। मैं ना नहीं बोलता हूँ, भगवान सब में, भगवान एक ही है, कोई बात है, वो तो एक्सेप्टेड, और सब में भगवान है वो भी एक्सेप्टेड, पर उनकी पहचान हुई है, किसे बोलते हैं? मैं आपको, आप गलत ऐसा नहीं बताना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, सबने समाज दे, सुनी है, हाँ, कहानियां जो सुनी है, चाहे गुरु जी की, गुरु साहब की हुई है या रामकृष्ण जी की हुई है, तो वो सब हमने सुनी है भाई, बराबर है, हम उस परफेक्ट, टाइम पे थे नहीं, हाँ, तो हमने जब सुनी है, हाँ, वो टाइम में हम थे नहीं, हाँ, और हम उनको मानते हैं, हाँ ना, बराबर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, गुरु जी या कोई ऐसे लोग हैं, उन्होंने हमें बताया और हमने मान लिया, उन पे श्रद्धा रख के हमने मान लिया। तो हम जो माने हुए भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पहचान कर भक्ति नहीं करते। और भगवान ने क्या बताया कि भगवान ने ऐसा मानकर भी भक्ति करेंगे तो आपको पुण्य बनेगा, और मुझे पहचान कर भक्ति करेंगे तो आपके भीतर के राम खुले हो जाएंगे। समझ में आई इसी बात है? अब बहुत सोच में पड़ गए कि मेरे बोलने में गलती हो गई? नहीं, गलती तो नहीं हुई, हाँ। बस कुछ और सोच रही थी मैं। हाँ, बोलो, क्या सोचे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा धर्म वही है कि किसी को हर्ट मत करो। नहीं, वो तो बराबर है, हाँ जी, ये मानव धर्म की शुरुआत ही ऐसे होती है, आप किसी को हर्ट नहीं करते रहे, कि मानव धर्म का मतलब क्या है कि आप किसी का कुछ भी डीलिंग करते हैं तो पहले अंदर विचार आता है कि ऐसा ही डीलिंग कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये समझ के साथ आप सबके साथ डीलिंग करते हैं, वो मानव धर्म की शुरुआत हो गई। फिर मानव धर्म से तो बहुत आगे जाने का है। हम जो सनातन धर्म बोलते हैं ना, वो भी क्या, हम सनातन धर्म शब्दों से बोलते हैं। तो किसी को पूछेंगे तो मैक्सिमम क्या बताएंगे कि सनातन में सबसे पुराना, अपना धर्म है सबसे पुराना है, अपने शास्त्र कब बने किसी को पता नहीं है, ऐसा सब बोलेंगे, सबसे पुराना है, क्रिश्चियन से भी पुराना है, मुस्लिम से भी पुराना है, ऐसा सब बोलेंगे। मगर ऐसा नहीं है, ये मतलब उनका ऐसा, उनका मतलब क्या है, सनातन, सनातन मीन्स परमानेंट, सनातन मीन्स परमानेंट, परमानेंट को पाने का जो रास्ता, उनको सनातन धर्म बोलते हैं। अभी आपको ख्याल में है मैं जो कहना चाहता हूं? आत्मा को सनातन बोलते हैं, सनातन मीन्स परमानेंट। तो आत्मा है वो परमानेंट है, और ये देह है, ये नामधारी है, वो टेम्पररी है। ख्याल में? क्या आपका शुभ नाम क्या, फर्स्ट नेम क्या है? हनु। हाँ, तो आप पहले आए थे? आए थे ना? हाँ हाँ। तो आपको ये सब पता है, बहुत कुछ पता है।
तो उस समय मैंने होमवर्क नहीं दिया था नहीं है। नहीं हाँ, मेरी आपने गलती। अगले दिन बुलाया था हाँ मेरी बट गलती मैं है। उस अगले दिन आई नहीं थी जिस दिन हाँ। होमवर्क देना था। हाँ मेरी तो भाई यही सोच कर रहा गई थी। अनुदी का ये फर्स्ट सत्संग है, तीसरा है। हाँ बस। तो उस समय आपको होमवर्क नहीं दिया था। हाँ जी। हाँ बराबर परफेक्ट है। तो अभी तो दिया है, अभी करना पड़ेगा। जी तो ये क्या है कि हनु आपका नाम है। आप क्या बोलेंगे माई नेम। तो जब बोलते हैं कि मेरा नाम, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका नाम है, आप खुद नहीं है। समझा? और ऐसे तो आपको पता ही चलेगा कि हनु इज टेम्पररी, उनका लाइफ स्पान है 100 ईयर्स का, बट योर ट्रू सेल्फ इज परमानेंट। तो आपके ट्रू सेल्फ को पहचाना, वो पहचानने का रास्ता उनको सनातन धर्म बोलते हैं। सही बात समझे? हम कैसे करते हैं कि हम जो भी भगवान को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, शिव जी को, हनुमान जी को, गणपति को, तो वो पकड़ के रखते और भक्ति करते, ऐसे एक जगह पे स्थिर होते। अच्छी बात है, एक जगह पे स्थिर होते हैं ना, अच्छी बात है, उनका थोड़ा डेवलपमेंट होता है। मगर साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए, भगवान कभी बाउंड्री में होगा? नहीं। कभी भी नहीं। मगर हम बाउंड्री बनाते हैं कि नहीं बनाते? हम बाउंड्री बनाते हैं कि हम मानो कि कोई वैष्णव है तो बोलेंगे कि हमें एक क्या है, हमें ये खाने का या नहीं खाने का, नहीं बोलेंगे। कोई जैन हो तो बोलेगा कि हमें कंदमूल नहीं खाने का। कोई वैष्णव तो बोलते कि ये अनियन गार्लिक नहीं खाने का, बहुत तामसी है। हमें ये करने का, ये नहीं करने का, ऐसी सब प्रकार की बाउंड्री होती है। बाउंड्री सिर्फ डेवलप होने के लिए है, रिजिड होने के लिए नहीं है। और जब बाउंड्री से उठकर ऊपर बाहर आते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है। कि गॉड, भगवान कभी बाउंड्री में नहीं होते। गॉड इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाउंड्री तोड़ने की है, ध्यान में रखने का है कि हम जिस तरह से भगवान को मानते हैं, भगवान वैसे नहीं है। हम तो कैसे, क्या बोलते हैं छोटे बच्चों को समझाने के लिए, क्या बोलेंगे कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान आपकी मदद करेगा। और दूसरी ओर हम क्या बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी है, सनातन धर्म मानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कर्म को मानते हैं। दूसरे ओर क्या बोलेंगे कि सबको अपना कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक और हम बोलते हैं सब भगवान करते हैं, सब भगवान करते हैं, सब ऊपर वाले के हाथ में है, नहीं बोलते। और आप तो, आपका बिजनेस है, प्रॉफिट होता है, सब बोलते हैं ऊपर वाले ने प्रॉफिट करवाया। तब तो बोलेंगे मैंने प्लानिंग किया, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था, ऐसा बोलेंगे, ये तो सब मेरा प्लानिंग था। हाँ। तो जब अच्छा हुआ तो मैंने किया, और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनके ऊपर डालेंगे, ऊपर वाले के हाथ में। समझ ऐसी बात है? तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान है, मगर हम जो भगवान को करने वाला मानते हैं, करता हरता मानते हैं, उनसे भगवान का पद बहुत ऊपर का है। और भगवान को हम डिमोट कर देते हैं, उनको डूअर मानते हैं कि भगवान ही सब चलाता है, भगवान ही सब कराता है। अरे ये इतना बड़ा ये मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उनका प्रेसिडेंट है, सब देखने, कुछ भी देखने के लिए जाते हैं। आप सोचो हम भगवान का कितना इंसल्ट करते हैं। तो भगवान है, और एक और हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कर्म, तो पिछले जन्म में हमने जो कर्म बनाए उनका फल अभी भुगत रहे। तो हमारे बनाए हुए कर्म का फल भुगत रहे, तो बीच में भगवान कहां आया? समझा? मगर जो बोलते हैं सब लोग कि भगवान के हाथ में अच्छा है, उनको हिलाने का नहीं। क्यों अच्छा है? क्योंकि कुछ उनको ऐसा कुछ दुख आया तो सोचेगा भाई भगवान की भक्ति करता हूं, भगवान मेरे सामने देखेगा
भगवान मुझे दुख से बाहर निकालेगा, तुमको एक सपोर्ट रहेगा ना, इस तरह से अच्छा है। मगर भगवान राम थे, भगवान राम भी 14 साल वनवास में जाना पड़ा था, तो भगवान से फिर भी जाना पड़ा। तो भगवान भी अपने कर्म को टाल नहीं सकते हैं, तो हम तो कौन से खेत की मूली, समझना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली ऐसा हो जाने का भगवान राम का देख के कि भगवान राम थे, उनको राज्य गादी पे बैठने का था, उसकी जगह 14 साल का वनवास आया, तो भगवान ने वो संजोग को बदलने का प्रयत्न किया कि संजोग का स्वीकार किया। जो भी बाहरी संजोग है उनको स्वीकार, उनको वेलकम किया। तो हमें तो क्या करने का है कि भगवान के बारे से शक्ति मांगने की कि आपको इतने भारी भारी संजोग है, सभी संजोग को आपने वेलकम किया, और वो संजोग के लिए, वो संजोग खड़ा होने के लिए जो भी निमित्त हुआ, आपने वो संजोग जो खड़ा हुआ उसमें जो निमित्त हुआ, आपने वो निमित्त को ब्लेम नहीं किया। आपने कोई निमित्त को ब्लेम नहीं किया। भगवान राम ने कोई निमित्त को ब्लेम किया था? और हम क्या करते हैं, सबको ब्लेम करते हैं। तो भगवान राम की भक्ति करते, भगवान राम का ऐसा मांगने का कि आप जिस तरह से रहे, आपने सारे संजोग को वेलकम किया, किसी को संजोग को हटाने का प्रयत्न नहीं किया, और किसी को दोषी भी नहीं देखा, तब मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि आपकी तरफ से मैं भी सब संजोग को वेलकम कर सकूं और किसी को दोषी नहीं देखूं। तो भगवान राम को भी आनंद होगा, तभी उनकी कृपा उतरेगी कि मेरे पास जो है वो मांग रहा है। आपको समझा? ये बातें थोड़ी नई है, थोड़ी दिमाग में घुसने में टाइम लगेगा, मगर है साइंटिफिक और इन प्रिंसिपल। Right. You know him, right? हाँ, हम कब मिले थे ना पहले इंडिया आया था ना, क्लास। हाँ, इंडियन लास्ट ईयर आया था ना हमारे साथ। correct. So we met in India last year. You remember? Yes. You enjoyed in India, but Yeah. and I am enjoying in your Canada. Take the train from one end to the other end. Now you have to speak in English for him. No problem. Later. So you understood? So if you want to progress on the path of religion, if you want to progress on the path of liberation, I am telling you scientifically, there should not be any contradiction in your belief. If you can remove that, if that contradiction is removed, then you can progress. Now you ask whatever you want to ask. समझ में आती है ना? थोड़ी नई है वो समझने जैसी। और फिर तो अभी तो मिलेंगे नहीं। ये तो कृष्णा है, आपकी कलीग है, आपकी, तो आप आएंगे, फिर तो हम 2-4 दिन है, 2-3 दिन, अभी तो आप आएंगे भी नहीं। तो कोई बात नहीं, दूसरी बार उनको बोलूंगा भी तेरे घर पे सत्संग रखना, तो सबको बुलाना। You want to ask me anything? No, no, Good. no. But in between, if you have any question, you feel free. This is interactive discourse, so no problem. You have not to listen. You can ask. आप पूछो, आपको जो अभी कंफ्यूजन है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है। पर बात थोड़ी नहीं लगती है, नहीं थोड़ी। मैं सच्ची बताऊं, मैं सत्संग में दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ओह गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तो आपको अच्छा सेट होगा। हाँ, हाँ, आपकी ये क्या है, जो नोटबुक इज ब्लैंक, तो आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। मैं अच्छी बात, तो बोल नहीं होते। नहीं, हाँ, तो बिल्कुल अच्छा। फर्स्ट टाइम आए तो वैसा ऐसी बात है। और दूसरे
सब जगह सत्संग में जाते हैं वहां सब स्टोरी वो सब होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा ऐसे ये इंटरेक्शन है ना, तो कभी हो जाता है कभी। लाइक पर्सनल एज ए पर्सन इज फर्स्ट टाइम, बट वैसे तो चलो टीवी पे या फोन पे वो तो कई बार ऐसे देखे हैं, बट हाँ, इन पर्सन पहली मैं बार कभी गई। तो बहुत अच्छा है। यू आर वेरी लकी कि कोई जगह पे फंसा ही नहीं है। वो बात आपको समझ में आई? हाँ जी। क्या आपका नाम क्या, फर्स्ट नेम? राजवीर। राजवीर। वीर। राजवीर। ये सबके पीछे कौन लगता है नहीं, हाँ जी। तो वो पता नहीं चलता है कि लेडीज है कि मेल है कि हाँ फीमेल जी, है। क्योंकि जो गर्ल्स होती है उनके पीछे कौर लगता है, जो मैन होते हैं उनके पीछे सिंह लगता है। अच्छा ऐसा है, हाँ जी। दोनों के पीछे कौन नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, हाँ तो अच्छा, देखो मुझे भी आपके पास जानने को मिला। तो राजवीर ये क्या है कि आपको ये मनुष्य जन्म मिला है ना, और वो भी यू आर इंडियन, बेसिकली यू आर बिलीविंग इन सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो फॉर अस all the people, they have a goal of life, but they are all having which type of goal? I want to study, I want to do job, I want to do business, I want to earn money, like that. I good house, good family, all that. But all these are interim goals. But as a human being, the ultimate goal of our life, the ultimate goal of our life is to realize who am I. मैं खुद कौन हूं वो पहचानना, वो हमारे जीवन का अंतिम गोल है, अल्टीमेट गोल। समझ आई इसी बात में? और हम वी हिंदुस्तानी वी से कि गॉड इज इन ऑल लिविंग बीइंग, ऐसा बोलते हैं, गॉड इज इन ऑल लिविंग बीइंग। So Rajveer is a living being and God is within Rajveer. Simple thing. And Rajveer is temporary and God within is permanent. So now the ultimate goal of your life is to realize the permanent within your true self. तो आपको जॉब करने का, घर चलाने का, सब सोशल सब संभालने का, पर एक लक्ष्य में रखने का कि जब when I will realize my true self, then this human life is successful. Otherwise आपने कितना भी पैसा कमाया, सबको हेल्प किया, सब कुछ किया, पुण्य बनेगी, दूसरा अच्छा जन्म मिलेगा, मगर भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ जिया है। But when you realize your true self, तो इतना ध्यान में रखना है कि मुझे ऐसा कुछ पाना है, और जहां तक नहीं पाया है वहां तक जो मैंने प्रार्थना बताई ने वो करने का, तो आपको संसार में रह के सुख मिलेगा। संसार में रह के सुख का मतलब क्या है कि सुख तो आप समझते हैं, हैप्पीनेस, यू अंडरस्टैंड। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, वन टेम्पररी एंड वन परमानेंट। टेम्पररी हैप्पीनेस, at present you are happy and after some times you are not happy, that is temporary happiness. और परमानेंट हैप्पीनेस आने के बाद जाती नहीं है, सिंपल है। टेम्पररी हैप्पीनेस, आपका पर्स अच्छा है तो आपको उसमें सुख आएगा, आपके ड्रेस के साथ उनका मैचिंग होगा तो सुख आएगा, और आप निकल रहे, आपने ड्रेस लिया और वो ड्रेस का वो पर्स नहीं मिला तो लगेगा आज बराबर नहीं है, ऐसा अंदर इफेक्ट होगी, आपको जल्दी निकल जाएंगे और भीतर रहेगा। तो ये टेम्पररी हैप्पीनेस है ना। इसके बाद बिकॉज इट इज टेम्पररी,
तो अनहैप्पीनेस आती है। वीकेंड आएगा, छुट्टी है, तो कितना है फ्राइडे नाइट को कितना अच्छा लगता है। हाँ, मंडे भी वो मंडे मंडे भी आता है। हाँ मंडे भी आता है, और मंडे मॉर्निंग सब वो चली जाते हैं, हैप्पीनेस चली जाती है। No, they like the boss. नहीं नहीं ऐसा नहीं, काम करते हैं छुट्टियां होती हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनकी भी चली जाती है। बोले बॉस है, आपकी भी चली जाती है। मेरी चली जाती है क्योंकि मंडे को इनका काम करने का दिल नहीं होता किसी का। सही बात है। नहीं बराबर ऐसा ही होता है। कल मंडे था राइट, छुट्टी वाले मोड में रहते हैं हम मंडे को भी। सॉरी पिछले मंडे मैंने जस्ट स्टार्टेड राइट, तो मुझे एक एम्प्लॉय आके बोलता है, हेलो एक्चुअली आई एम नॉट लाइक फीलिंग टू वर्क, कैन आई गो होम? आई सेड नो। अच्छा है ना, उनको कहा तू चला जाए, कोई काम ही नहीं है। नहीं काम बहुत है। नहीं ऐसा अनुभव होगा कि वो एम्प्लॉय चला जाएगा फिर भी काम होता रहेगा। हाँ वो तो है ये जो अनुभव होता है ना, जी। तो आपको प्रेजुडिस के बिना काम करेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि भाई ये है अच्छा काम करेगी, ये बराबर का, ये ठीक से काम नहीं करेगी, ये ऐसा होगा, उनका ऐसा होगा। और सही में क्या है कि हमें लगता है उसने ये किया, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसा लगता है। बट हैव यू एवर थॉट हु इज द डूअर इन दिस वर्ल्ड? इस जगत में कर्ता कौन होगा? वही करवाने वाला सब, वही है जो करवा रहा है राइट, जो करवा रहा है, ऊपर वाला। वो तो मैंने बताया ऊपर वाला। तो हमने उसको लोअर लेवल पे रहते हैं। तो अच्छा ग्राफिक अच्छा किया। एक समझने के लिए, साइंटिफिकली समझने के लिए, हम हिंदू हैं, हम जानते हैं कि हमारा पिछले जन्म में जो कर्म बना उनका भी फल आ रहा है, प्रारब्ध कर्म के अधीन सब मिलता है, और नहीं मिलता है वो भी प्रारब्ध कर्म के अधीन, ऐसा हम जानते हैं। मगर फिर भी कोई हमें हर्ट करेगा, उनको ब्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी को ब्लेम करना बंद हो गया ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है आपका। कोई कुछ भी करे, आपका अपमान करे, आपको दुख दे, आपको चीटिंग करे, आपका पैसा ले गया, आपको कुछ नुकसान किया, फिर भी आपको कोई व्यक्ति दोषी नहीं दिखाई देता है, तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। हार्डेस्ट थिंग है। हाँ देखो अब टाइम देखो, टाइम हो गया नहीं? You can't leave it at a climax, though. You Yeah. have to, you have to deal with this. So I'm giving you a simple example. क्या आपको पता है कि हार्डेस्ट है कि किसी को ब्लेम नहीं करना है, और कोई भी हमें ब्लेम तो करता है नहीं, मगर एक समझने के लिए कि हम जनरली क्या करते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया तो क्रेडिट हम लेते हैं कि मैंने किया, क्रेडिट शेयर भी नहीं कर पाते। एक समझने के लिए कि मैंने किया, और कुछ गलत हुआ तो बोलते हैं कि मेरी गलती होगी, हम कोई किसी को ब्लेम करेंगे तो कोई नहीं मिलेगा तो बोलेंगे माय स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, किसी को ऊपर डाल देंगे। तो सही में एक कर कौन रहा? मानो कि एक चाय बनाने की, आपको चाय बनाना आता है? पक्का ना? अच्छा हाँ बोलते हैं, नहीं तो गुस्सा करेंगे, ऐसा कैसा प्रश्न करते हैं? तो चाय बनाने की आपकी शक्ति है ना? ओके, तो कैन यू मेक 1 cup of tea sitting there? तो बनाओ। नहीं बना? समझ में?
जो चाय बनाने की आपकी शक्ति है तो आप यहां बना के भी चाय बना सकते हैं, बट इज इट पॉसिबल? इसके लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा, वहां हॉट प्लेट होना चाहिए, पोट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। और ये कृष्णा का घर है ना, इनका किचन है, उसने चाय पत्ती कहाँ रखी है मिलनी भी चाहिए ना, और चाय पत्ती नहीं मिली तो भी चाय बना पाएंगे? तो चाय आप बनाते हैं कि सारे एविडेंस मिलते हैं तो चाय हो जाती है? सब चीजें मिलती है तो फिर ही होती है। हाँ, सब चीजें मिलते तो हो जाती है ना। मीन्स आउट ऑफ ऑल दिस एविडेंसेस you are simply one of the evidences. You are not independent doer, but you are instrumental. समझ आया राजवीर? आपको समझ आया ना? हाँ जी। पक्का ना? अब बोर मत हो जाना, मुझे डर लग रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है, सबसे बड़ी बात है। हाँ बोल। टीवी पे भी लगाऊं तो नींद आ जाती। आपने मुझे अच्छी तरह से एपिसोड कर लिया। अच्छा, यार नींद नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ है, पर चाय पत्ती नहीं है, टी लीफ नहीं है, तो यू कैन मेक टी। आपको यू आर एक्सपर्ट इन मेकिंग टी, फिर भी नहीं होगी। तो जैसे सभी संजोग, व्हेन ऑल द फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस दे गेट टुगेदर, देन एंड ओनली देन एनी इवेंट कैन हैपन। समझ रहे इसी बात है? तो ये आप जो चाय बनाते हैं, यू आर ऑल्सो सिंपली वन ऑफ द एविडेंसेस। यू आर नॉट इंस्ट्रूमेंटल, यू आर इंस्ट्रूमेंटल, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंस्ट्रूमेंटल समझते हैं ना? ये आप बिजनेस करते हैं, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अबाउट कैसे $25,000 का आपको रिफंड आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सुबह में ऐसा निकल रहे हैं और पोस्ट बॉक्स पे वो डालने के लिए आया है, तो आप देखते चलो ले लेते हैं, और देखते गए तो इनकम टैक्स का लेटर है, तो आपको जल्दी फिर भी खोल के वहां देखेंगे, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे $25,000 का रिफंड मिलने वाला है। वो उसमें लिखा है कि आपने ऐसा ऐसा ये किया, ये गलती है, ये गलती है, तो आपको 25,000 फाइन के साथ दूसरा $25,000 भरने का है। तो फिर आपको वो पोस्टमैन पे गुस्सा आएगा ना? गवर्नमेंट पे आएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो फॉर यू ही इज सिंपली पोस्टमैन, मीन्स ही इज सिंपली इंस्ट्रूमेंटल। सो यू नेवर ब्लेम पोस्टमैन। बराबर है? सेम वे, if somebody is hurting you, insulting you, they are the postman of the nature. So you can't blame them. ये पोस्टमैन को ब्लेम करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, जेल में जाना पड़ेगा। तो यहां भी कुदरत के पोस्टमैन के लिए कुदरत के पोस्टमैन को ब्लेम करेंगे तो क्या होगा? हम जानते ही नहीं है। समझे? तो घर में मन आपका हस्बैंड है, इसने आपका इंसल्ट किया है, उनको नहीं बोलेगा, आपको भीतर समझने का, ये इज पोस्टमैन। उनको नहीं बोलेगा हाँ झगड़ा हो जाएगा ज्यादा, बोलेगा अंदर समझ गया, इज पोस्टमैन, इज इंस्ट्रूमेंटल। राजवीर समझ गई ये बात? बिल्कुल समझ आई। आपकी नींद हो रही है ना अभी? ऐसा सब जगह यूज करते रहना, सब जगह यूज करते रहने का। ये डाकिया है, पोस्टमैन है, कुरियर बॉय है, ऐसा मीन्स ही इज इंस्ट्रूमेंटल, ही इज नॉट डूअर। सब जगह यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपके भीतर आनंद रहेगा। इतना समझ में आया ना आपको? हाँ, नहीं समझा, समझाए जैसे तो ये इस तरह से रखेंगे ना, तो क्या होगा? आपको कोई भी किसी काम दे रहा है, सब बोलेंगे ये करो ये करो, क्यों नहीं किया, डांटेंगे, सब कुछ करेंगे, पर भीतर रहेगा कि सेज पोस्टमैन। तो भीतर से आपका प्योर रहेगा, बाहर से व्यवहार है तो व्यवहार के हिसाब से डांटेंगे, सब कुछ बोलेंगे, उनको नोटिस भी दे देंगे कि भाई ऐसे काम नहीं करें, हम आपको फिर सेकंड करेंगे। पर भीतर रहेगा कि से इज द पोस्टमैन ऑफ द नेचर।
तो पोस्टमैन बोलेंगे आपको उनकी गलती नहीं दी, उनका दोष नहीं दिखाई देगा। तो किसी का दोष नहीं दिखाई देता है तो कितनी बड़ी बात है। पता है आपको कितनी बड़ी बात है? There is one law of the nature, law of the mother nature। क्या नियम है कि as far as you see the faults of other people, जहां तक आपको दूसरों की गलतियां दिखाई देती है, आपको इस संसार में भटकना पड़ता है। You have to wander in this world, rebirth and this life and death cycle। फिर जब ऐसा आपको ऐसी कोई दृष्टि मिल गई, जैसे आज आपको ये समझ प्राप्त हुई ना कि ये पोस्टमैन है, ये डाकिया, ऐसी जो समझ प्राप्त हुई, तो क्या होगा कि आपको दूसरों की गलती नहीं दिखाई देगी। जितना यूज करेंगे तो गलती दिखाई दे, यूज किया तो निर्दोष दिखाई देगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि आपको आपकी सारी गलतियां दिखाई देगी, मगर दूसरे सारे निर्दोष दिखाई देंगे। तो तभी समझने का कि नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ लिबरेशन। मोक्ष के मार्ग पे आप प्रगति कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, गलतियों का स्वभाव कैसा है कि आपको आपकी गलतियां दिखाई देगी और आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आपको उनके लिए पिंचिंग रहेगा, आपको रहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गलती का स्वभाव है कि आप उनको खाना नहीं देंगे ना तो ये घर में नहीं रहती, घर छोड़ के चली जाती है। समझ रहा है? आपका गुस्सा है, उनका रक्षण नहीं करेंगे। आपका तो गुस्सा नहीं है नहीं, ये किसी में क्रोध नहीं आता। वैसा समझने के लिए बता, आपका हस्बैंड कर लेते होंगे। हाँ वो कर। अभी एक बताओ, समझो कि फूड के प्रोटेक्शन कैसे करते। मानो आपके हस्बैंड ने किसी पे गुस्सा किया, कोई स्टाफ पे गुस्सा किया, फिर आप उनको बोलेंगे अरे भाई छोड़ो नहीं, ये तो सब ऐसे होते हैं, ऐसे गुस्सा नहीं करने का, अपना दिमाग खराब नहीं करने का। तो वो क्या बोलेगा, अरे तेरे को पता नहीं, ये लोग है ही ऐसे, उनके ऊपर गुस्सा करे तभी काम करते। समझ में? ये क्या हुआ, अपने गुस्से का, अपने क्रोध का प्रोटेक्शन किया, फिर वो अंदर से जाएगा नहीं। वो समझ है मुझे बता दो कि वो मेरे ऑफिस में नहीं आते। मैं होता है ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे समझ के कैसे हम खुराक देते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हमने खुराक देना बंद कर दिया तो भीतर वो आपके घर पे कोई गेस्ट आएंगे नहीं, आप उनको वो एक वीक रहने वाले हैं और आप अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, वो 2 दिन में चले जाएंगे। बराबर है, सिंपल है। ऐसा ये भीतर के जो दुश्मन है, भीतर जो सारी गलतियां पड़ी है, आप उनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उनके लिए खेद रखेंगे, तो क्या होगा, ये गलतियां एक के बाद एक निकलती जाएगी। और ऐसे करते करते आपकी लास्ट गलती भी निकल गई तो आपके भीतर के राम प्रकट हो जाएंगे। तो आपके भीतर के भगवान को प्रकट करना है ना राजवीर, भीतर के भगवान को प्रकट करना है ना। तो ये रास्ता है, सिंपल रास्ता है, करना। और फिर दूसरी बार मिलेंगे ना, जब भी संजोग मिलेगा तब कर लेंगे आगे की बात। टाइम हुआ तो पूरा करना पड़ेगा, ओवर टाइम ये देंगे और मैं तो नहीं देता हूं। तो क्लियर है इतनी बात। आज 2 बात बताई आपको, कौन सी बताई? टू हैप्पीनेस। हाँ, वो सुबह की प्रार्थना, रात का वो माफी मांगना, वो। और दूसरी बात है किसी का वो दोस्त नहीं देखने का, इंस्ट्रूमेंटल पोस्टमैन, सबको पोस्टमैन देखने का। 2 बात। दूसरी बार आओ याद रखना, नहीं तो मैं कृष्णा को भी फोन करके पूछूंगा। थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हूँ इसमें, ऐसा दिखाई देता हूँ सिंपल, मैं स्ट्रिक्ट हूँ पेपर चेक करने में। आपने होमवर्क किया कि नहीं, क्या वो चेक करने में स्ट्रिक्ट हूँ। तो चलो पूरा करते हैं। अभी देखो ये जो सारी बातें हैं ना, ये गुजरात में दादा भगवान करके, ऐसे उनका नाम था A.M. पटेल, और 1958 में, he was born in 1908, and at the age of 50, when he was traveling from Biara to Baroda, so at that time he has to travel by train, क्योंकि रास्ते नहीं थे, तो ट्रेन भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती थी, तो जैसे होपिंग फ्लाइट होती है ऐसा बीच में उनको सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बदलनी पड़ती थी।
So when he was waiting at Surat railway station for the train of Baroda, to catch the Baroda train, at that time, but naturally, without any efforts, all the coverings within were unveiled, and he realized his true self. तो क्या हो, भीतर जो भगवान है उनके ऊपर से सारे आवरण हट गए और ये ज्ञान प्रकाश खुला हो गया। और उसी दिन से, उसी समय से वो निरंतर अपने आत्मा स्वरूप में रहते थे। वो देह के साथ मन वचन कैसे भिन्न अलग, ऐसे अपने देह के साथ एक, आत्मा के साथ एक होके रहते थे। ऐसे उनकी अवस्था हो गई। तो ये दादा भगवान जो बोलते हैं ना, तो दादा भगवान ये जो दिखाई देते वो दादा भगवान नहीं, ये जो चित्रपट है ना, ये जो दिखाई देते ये तो एम पट है, मगर उनके भीतर जो चेतन तो प्रकट हो गया, उनको दादा भगवान बोलते। और वही दादा भगवान हम सबके भीतर भी है, बराबर, हम सबके भीतर भी है। तो ये कीर्तन भक्ति थी, ये कीर्तन भक्ति, इट इज इन गुजराती। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, मीन्स दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, बट इट्स ए यूनिक चैंटिंग। इनका वाइब्रेशन वो सब ऐसा है कि आपको पीस ऑफ माइंड तो हो जाती है, मगर भीतर आनंद भी हो जाता है। मगर आपको कैसे करने का कि मैं राजवी मेरे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति कर रही हूँ, विद दैट अवेयरनेस करने का है। तो हम सब सत्संग के बाद में ऐसा 10 मिनट एक कीर्तन भक्ति करते, तो कर लेते, करना है 10 मिनट। क्या हाँ करिए ना, वैलो पूर्ण है करो। हाँ तो लेट થઈ ગયું આજે। કેશવાનંદજી બોલાવો એટલે આ છોકરાઓ हाँ છોકરાઓ બોલે કેશવાનજી બોલો, કેશવાનંદજી બોલાવો। हाँ। तो आप तीनों बोलना, दिल से बोलना, और ऐसे समझ के साथ, जागृति के साथ कि मैं मेरे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। नीता अभी तक बोलिए। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, 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 सिम जय जयकार हो,
ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ ભારત સહોદરના ભારત સહોદરના શુરવીર તારે લાવજો શુરવીર તારે લાવજો કાયર બનો ના કોઈ દી કાયર બનોના કોઈ દી કષ્ટો સદા કંપાવજો કષ્ટો સદા કંપાવજો રે સિંહના સંતાનને રે સિંહના સંતાનને શિયાળ તે શું કરી શકે શિયાળ તે શું કરી શકે મરણાંત સંકટ મેં ટકે મરણાંત સંકટ મેં ટકે તે ટેકનાર ધરનાર છે તે ટેકનાર ધરનાર છે જગત પરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ 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 અને પ્રબળ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ આખા
આખા જગતનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. આખા જગતનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. અને તેનું નિમિત્ત બનવાની, અને તેનું નિમિત્ત બનવાની આમ સૌ મહાત્માઓને, આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.